सो वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ रीलर्न। हम लोग हर वीक एक ऐसे पर्सन को बुलाते हैं हु कैन इंस्पायर अस, हु कैन गाइड अस टू अ बेटर फ्यूचर, टू सक्सेस बेसिकली। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, जो हमें एडवाइस दे सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं कि व्हाट इज द राइट वे टू अचीव सक्सेस। अपने अपने फील्ड में उन्होंने किस तरीके से सक्सेस को अचीव किया है। सो फॉर दैट टुडे वी हैव विद अस अंकुर अग्रवाल, जो वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट है। And after that he was like, after a certain period of time he was working in Microsoft. अभी वो एज ए सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर एंड आर्किटेक्ट वर्क कर रहे हैं ट्विलियो में। एंड he actually has achieved a massive success in his life. अटेंशन टू डिटेल इनकी क्वालिटी है, ये बहुत परफेक्टली चीजों को करते हैं, परफेक्शन के साथ चीजों को करते हैं। परफेक्टली भी वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं। एंड कहीं ना कहीं हर किसी सक्सेसफुल पर्सन का एक ट्रेट होता है, इनके भी ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स हैं। He is a brilliant guy and काफी genius है ये। He has worked in many startups as well. So I would like to invite Ankur to tell us more about his journey. And Ankur, sorry बीच में technical glitch आ गया था कुछ, and please tell us again. Thanks, Suman. Thanks for inviting me. So, all right, let's start. So, till now, my journey has been amazing. And unconsciously, consciously, my journey started when I was in 6th class. And so, at my home, we had a internet cafe. And I had a lot of interest and I started handling things there, like involved into the role of managing the cyber cafe completely. So initially I used to assemble computers. I learned assembling by my own trial and error. I broke down few computers as well, but eventually like I learned that. And after that, I started setting up networks. So I knew how the basic networking works. I learned about reading articles, blogs, and whatever things are required. And I learned that. And after that, I started building small web applications. It was just a fascination for me. At that time, internet was not that mature. I'm talking about the time frame of 2000, 2001. So I built small websites using front page and basic HTML, CSS. And that's where my interest started growing. Like in my 11th class, I helped my brother building an app for my cyber cafe to manage the cyber cafe. And after that, when I was choosing colleges, I chose where I wanted computer science as a stream. So I got in IT branch in VIT. And during my college time, I was a lot fascinated from startups. I wanted to start my own company. And I, with one of my friends, built campus forum. So it was like you can have technical discussions in your campus with your friends and people surrounding it. We got a decent success, but it was not very successful. And I learned a lot along my journey why that was not successful. Apart from that, I did a bit of freelancing projects as well that gave me good learning technically as well as product wise. After that, when I was choosing company, I got selected at Texas Instruments. Although the stream was a bit different, it was embedded systems, but I felt like the TI is a great company as well as it gave me a lot of opportunity to learn about system internals, computer architecture, and the fundamentals that I have read in college. I can validate that as well. That's where I joined Texas. I worked there for 2 years. And in that 2 years, I learned a lot about fundamentals, but I realized like I cannot see myself working for 60 years in embedded side. That's where I decided to move back to an internet-based company and explore my journey there. And I joined MySmartPrice. And I worked on few critical projects at MySmartPrice, and it was around the main thing that fascinated me there was the pace of development because of the domain they are and the traffic they had. They had around 20 million monthly active users. So whatever features we built, it was directly impacting 20 million plus users, and that was something that excited me a lot. After that, I have worked for Microsoft around 3 years, and I was part of Microsoft Teams product, and I was building critical features. Some of those were around search, and some of those were around Cortana. So there were interesting challenges there, and the scale was massive. So it was an amazing journey there, and and right now I'm working with Twilio as a principal architect. Okay, so अंकुर, आप थोड़ा बता पाएंगे एग्जैक्टली आपका डे टू डे वर्क क्या रहता है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर ऑन ए डेली बेसिस? व्हाट एग्जैक्टली यू डू एंड व्हाट इज द प्रोसेस यू यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम? जो भी प्रॉब्लम सामने आ रही है उन्हें सॉल्व करने की आपकी अप्रोच क्या होती है? अभी आप प्रिंसिपल इंजीनियर हैं, वहां पे आर्किटेक्ट हैं, सो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग दी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज ऑन यू. सो व्हाट इज योर अप्रोच टू दैट? और जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो भी समझ पाए कि अपनी लाइफ में किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अडेप्ट कर सकते हैं, विच यू आर यूजिंग राइट नाउ. So actually, I try to give a lot more ownership to people who are working with me.
so that they can take their own decisions. And we are here to help them, validate them. Sometimes we are wrong, sometimes they are wrong, and that's perfectly fine. The approach that, like typically there are two types of problem. Sometimes it is unstructured and sometimes it is structured. So let's take a case of unstructured problem. So the main important part is to bring clarity and make the unstructured problem a structured problem. And that could be an MVP. Like you take a bigger problem, identify a smaller problem out of it, simplify it, and then solve it. So generally, we follow the path of taking a bigger problem, then simplify it, identify what we can do right now, and see how it goes, and then improve on it and incrementally build on top of it. So that's how we generally take a problem, and we follow a lot of documentation. So let's say if you're building, let's take a case of a chat application. So we try to write an architecture doc which explains all the bits and pieces. What will be the front end piece? What will be the back end piece? How will the interaction happen? How will we test it out? How will we maintain it? How will we capture data and validate that the whatever we have built is good? And how will we identify rooms of improvement as well? The other aspect is we talk to customers as well to get their feedback and sense whatever we are building, does that fulfill their use cases as well? So that's the approach that we go through. Once that document is well prepared, so once the document is prepared, then every developer can take it up and build it. तो बेसिकली इस फ्लो के अंदर आपने पहले सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लिया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या करना है. अब उसको करना रिलेटिवली आसान है क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है. तो फिर जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करी है, द आइडिया इज यू हैव टू, आपको बिल्ड करते हो एग्जैक्टली सेम का सेम बिल्ड करना है. और अगर आपको कुछ कमियां लगती है, यू कैन एट एनी पॉइंट रेज दैट पॉइंट and update the document that you are building. It is not just like a waterfall कि तुमने एक document बना लिया, अब उसमें काम कर रहे हो, but both can go together after a certain clarity in the document. फिर other than that, attention to detail is very important. So अगर आप कोई भी फीचर पे काम कर रहे हो, especially being a front end developer, you have to work with designers. So make sure कि जो डिजाइन बन रहा है, you have an empathy with the customer and you are thinking from a customer's perspective कि जो फीचर मैं बना रहा हूँ दैट शुड सॉल्व द कस्टमर पेन पॉइंट्स. एंड ऐसा ना हो कि रियली में जब वो बने तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, नई प्रॉब्लम्स आ जाए. तो उसको ध्यान रखते हुए डिजाइनर को फीडबैक देना, डिजाइन के साथ वर्क करना, एंड देन फीचर बिल्ड होने के बाद मेक श्योर करना जो डिजाइनर दिया था एग्जैक्टली पिक्सल परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बिल्ड हुआ है. आई थिंक एट हाई लेवल दिस इज व्हाट वी डू. ओके, आई थिंक लोगों को समझ आया होगा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ आया. आई एम नॉट अ डेवलपर, सो अगर कोई, फॉर एग्जांपल यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर और यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो ऐसे क्या ट्रेड्स हैं व्हिच यू थिंक आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन दिस एरिया? And then I'll ask you about if somebody wants to join, let's say Microsoft, Facebook or Google kind of companies, what will be your advice to these people कि उन्हें next 5 years कैसे plan करना चाहिए from a simple company, service company to Microsoft and Google they can go. Yeah. Okay. So regarding traits, so I think the biggest trait is sense of ownership. अगर if you have sense of ownership, then जो भी आप करोगे, you will think of identifying ways to do it better. So आप में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिखेगा. द अदर थिंग इज कंटिन्यूस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक थ्योरी हमेशा सुनी होगी कि 0.1% इंप्रूवमेंट डेली करोगे तो 365 दिन में कितना इंप्रूवमेंट होगा, एंड दैट इज वेरी करेक्ट. तो आप रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो. उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, दूसरी चीज आपको अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो पता चलेगा. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि मेरे को क्या सीखना है और मैं कैसे सीख सकता हूँ. तो वो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Try to be a problem solver. Identifying problem is great, but identifying way to solve is even better. So, and nobody is perfect. So, अगर आप कोई भी problem solve कर रहे हो, तो your solution might not be perfect, but still you should think of a solution. Try to make it better each day. It will become better, and never be afraid of talking about your solution to anybody else. ऐसा रियली में मैंने देखा है, बहुत ही ज्यादा जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनको छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती और बड़ी बड़ी चीजें पता होती हैं. तो अगर आपको छोटी चीजें नहीं पता है तो डोंट बी अफ्रेड अबाउट इट, आस्क क्लियरली. एवरीबडी विल बी सपोर्टिव एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट. तो नेवर बी अफ्रेड इन शेयरिंग योर आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चंस. दैट विल हेल्प यू ग्रो एट एनी लेवल. यू कैन टॉक टू एनी कंपनीज, एनी सीनियर एग्जीक्यूटिव लीडर्स, सीईओ. आस्क योर क्वेश्चंस क्लियरली एंड शेयर व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील सीरियस, जेन्युइनली. एक और एस्पेक्ट है, बीइंग अ डेवलपर, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल
थिंकिंग अबाउट वेरी स्पेसिफिक थिंग्स दैट दे डू। तो आप उनको ये पता होता है कि उनको ये करना है, एक छोटा सा फीचर है वो बिल्ड करते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, बट दे डोंट नो बिगर पिक्चर। I think when you start understanding the bigger picture as well, your the area of opportunity improves for you. तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाती हैं और आपको बहुत सारे एरियाज मिल जाते हैं जहां आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ऑलवेज हैव अ बिगर पिक्चर इन माइंड व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग। द अदर थिंग इज लाइक love what you do. If you are an engineer, if you don't like your job, you will never be happy and you will never be improving. So you should love what you do. If you don't love, identify something else which you love and do that. ओके ग्रेट, थैंक्स अंकुर फॉर द एडवाइस। एक चीज मैं इन डिटेल पूछना चाहूंगा, जैसा आपने कहा पर डे 1% इम्प्रूवमेंट इफ समबडी डज और 0.1% इन नेक्स्ट 365 डेज नेक्स्ट लेवल पे वो बैठे होंगे, पर ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे इंश्योर करते हैं कि आप डेली इंप्रूव कर रहे हैं खुद को? इज इट थ्रू दी डिसिप्लिन और हैबिट फॉर्मेशन? किस चीज के थ्रू ऐसा आप कर पाते हैं और ऐसे क्या क्या प्रैक्टिसेस लोग यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव देमसेल्फ? सो बेसिकली मैं थोड़ा सा टाइम रोज देता हूँ। मैंने मतलब रोज अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर साइड कर रखा है पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक मैं क्या करता हूँ कि कुछ की लोग हैं जो फ्रंट एंड में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, सिमिलरली लाइक क्रोम कम्युनिटी है, तो क्रोम कम्युनिटी के कुछ चैनल्स हैं, तो मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा है। उनसे क्या होता है, नोटिफिकेशन आते हैं, तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो मैंने टाइम असाइड कर रखा है वो अपने आप निकल जाता है। And apart from that, the other aspect that I think I should emphasize on is building a good community around you, having great contacts. अगर आपके सर्कल में बहुत अच्छे लोग होंगे और आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे होंगे, you will have some overlap और some talks about कि यार ये काम कैसे करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, मैंने ये पढ़ा, तू क्या पढ़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मतलब लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ती है। तो एंड करियर में ग्रो करने के लिए इवेंचुअली यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स who help you and support you. At some point, if you're able to manage a mentor, that is even better. They will be very honest and open. आपकी shortcomings and आप क्या अच्छा करते हो वो आपको काफी अच्छे से बता पाएंगे। आपने मेंटोर की बात की अंकुर, इसमें ना थोड़ा सा आई हैव मेट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मेंटोर्स रहते हैं, वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो मेंटोर्स है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में खुद भी कुछ अचीव नहीं किया है, ना खुद से कुछ बनाया है आज तक, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द ट्रुथ। तो बच्चे कैसे ये इंश्योर करें, कैसे, या कोई भी पर्सन है जो अपनी डिसिप्लिन चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल दे माइट बी ए सॉफ्टवेयर डेवलपर राइट नाउ, दे वांट टू गो इनटू ऑपरेशंस लेट्स से, या कुछ भी और करना चाह रहे हैं, सो जो मेंटोर चूज करना है उन्हें, वो उसका प्रोसेस क्या रखेंगे, कैसे जाने कि ये सही मेंटोर रहेगा मेरे लिए? आई थिंक कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए मेंटरशिप के लिए। पहली चीज ये, आपका गोल क्या है मेंटरशिप से, आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो। इफ यू वांट लर्न टेक्निकली, then mentor should have good technical skills. If you want to learn leadership, then they should have accomplished something on the leadership side. The other thing is your mentor should be a great listener. If he is not a great listener, he will not be able to help you. And he should have empathy and want you to succeed. And उसको जज करने के लिए आपके पास तरीके हैं। अगर आपका मेंटर आपको एक बहुत अच्छा प्लान बनाता है और आपका प्लान आप दोनों मिलकर एग्री करते हो, एंड उसके ऊपर वो आपको कंटिन्यूअसली फीडबैक देता है, एक्शनेबल आइटम्स देता है, then like you are going on the right direction. Yeah, I think okay, so basically mentor choose करना लाइफ में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको गाइड कर सकते हैं सक्सेस की तरफ। अदरवाइज इन जनरल क्या होता है, अगर रास्ता ही नहीं पता तो जाओगे कहाँ? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको रास्ता ही अगर पता नहीं है तो आप कैसे किस जगह पर पहुंचेंगे। सो अंकुर, वो जर्नी थोड़ी सी टफ हो जाती है बेसिकली। देयर आर वेज, यस बट इट इज टफ। और लोग बता सकते हैं, जो जर्नी पर गए हुए हैं ऑलरेडी, वो आपको बता सकते हैं कि यस यहाँ पे ऐसे जाना है, यहाँ ऐसे जाना है, यहाँ पे ब्रेकर मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, सो दे नो अबाउट इट, राइट? सो अंकुर, आपने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है कहीं ना कहीं दे वांट टू ज्वाइन आइदर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, राइट? दीज काइंड ऑफ कंपनी जो टॉप टेक कंपनीज है। तो अगर कोई पर्सन अपना 5 years प्लान बनाता है कि उन्हें वहां पे जाना है, सो हाउ एग्जैक्टली दे शुड स्टार्ट? कि भाई अगर आप एक सर्विस कंपनी में है अभी, मैं तो ये भी नहीं कहता प्रोडक्ट कंपनी में, आप एक सर्विस कंपनी में वर्क कर रहे हैं अभी, तो वहां से नेक्स्ट 5 years में वहां तक कैसे पहुंच सकते हो विदाउट हैविंग ए वेरी गुड डिग्री, राइट? कि कोई आप बीआईटी या आईआईटी या फिर बिट से नहीं है, आप एक नॉर्मल कॉलेज से, स्टेट कॉलेज से, तो कैसे यहाँ से 5 साल में वहां तक पहुंच सकते हैं? गॉट इट। सो एक्चुअली आज के टाइम में कॉलेज डिग्री मैटर करती है, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है।
आप देखोगे इस टाइम पे people joining Microsoft, there are a lot of people who are joining from tier 2 colleges. Tier 2 me like although like there are classification, but it does not really matter. Like classification of a college. अभी काफी ट्रेंड बदल रहा है and everybody is focusing on skill based learning and what skills that you bring on the table. And every company is great. Culture wise, Microsoft, Google, these companies are really awesome. So and they provide a very good work culture and very good opportunities building products and the people that you work around are really awesome. Like you will every day you will learn something from everyone. But the hiring process is quite standard in all these companies, where it is quite similar to startups as well as service-based companies. The focus that they do, they want an engineer जो कि होलिस्टिकली सोच सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका टेक्निकल स्किल अच्छा होना चाहिए, आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ अच्छा काम करना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए अपने. तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं. तो जो आपको बहुत ही क्लियर प्लान बनाना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन जॉइनिंग एनी एमएनसी टॉप ईयर एमएनसी. तो आपको एक बहुत ही क्लियर प्लान बनाना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज योर लर्निंग प्लान. तो लर्निंग प्लान में जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ फ्रंट एंड इंजीनियर, तो फ्रंट एंड इंजीनियर के दो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड बेसिक एल्गोरिथम्स. तो एल्गोरिथम्स डेटा स्ट्रक्चर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इंप्रूव करते हैं एंड दैट रिफ्लेक्ट्स व्हेन यू वर्क कि आप जो भी सॉल्यूशन सोच रहे हो यू थिंक and try to optimize things. So your algorithm should be, you should continuously improve on your algorithm side. Then the second part is front end skill. So whatever, so you should focus on learning the JavaScript aspects and JavaScript के साथ problem solving with JavaScript as well. So to give you an example, जैसे आपको basic utilities लिखनी है, generic functions लिखने हैं, तो generic code कैसे लिखोगे, reusable code कैसे लिखोगे, आप जो लिख रहे हो वो कोई और यूज कैसे करेगा, और इन सब चीजों पे भी फोकस करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम योर जॉब व्हाट यू आर डूइंग, वो तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ ये चीजों पे फोकस होना चाहिए. HTML एंड CSS आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑफन लुक्ड अपॉन. सो लोग नहीं फोकस करते बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर एस्पेक्ट इज सिस्टम डिजाइन. So let's say system design is very important and it gives you it gives the company a perspective that like if this person comes to and join our team, he will think about the overall big system and also contribute in other areas apart from what they are doing. तो आप अगर अपना फीचर बना रहे हो, उस फीचर से सराउंडिंग में जो सिस्टम पे इम्पैक्ट होता है वो आपको समझ में आना चाहिए. उसी के लिए सिस्टम डिजाइन इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए कंपनीज आप देखोगे सिस्टम डिजाइन राउंड को आज काफी इंपॉर्टेंस दे रही है. तो और सिस्टम डिजाइन अगर रियली में समझ में आता है तो बहुत नेचुरली आता है कि यार ये सिस्टम मैं ऐसे बना दूंगा. तो ये पार्ट है. एंड लाइक द अदर एस्पेक्ट इज कोलैबोरेशन एंड ह्यूमिलिटी. यू शुड ऑलवेज बी हम्बल एंड टू वर्क विद पीपल, हेल्प देम आउट, and those attributes should also reflect in your learnings and your past experiences. Okay, great. That was a great advice actually. So अंकुर, थोड़ा सा आप अगर मतलब आप डेवलपर हैं तो कोई एक छोटा सा बेसिक कोई एप्लीकेशन जो एवरीबडी यूज लाइक मे बी वेदर ऐप, मे बी टू डू लिस्ट, समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक बेसिक एग्जांपल जिसपे अगर सिस्टम डिजाइन किसी को करना है, व्हाट शुड बी देयर अप्रोच, अगर आप उसको ओपन अप करके बता सकें, इफ यू कैन डू इट, कि ठीक है टू डू लिस्ट बनाना है तो ये प्रोसेस होगा, वेदर ऐप बनाना है, एकदम सिंपल कोई एग्जांपल. आई थिंक अगर हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं तो आई थिंक इसमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि इट विल टेक हाफ एन आवर टू 1 आवर. बट एट हाई लेवल यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट, एक तो क्या है, हमेशा सिस्टम डिजाइन को दो तरह से देखना चाहिए. एक बिगर लेवल पिक्चर एंड देन डीप डाउन वेरी डिटेल ऑन स्पेसिफिक पार्ट. तो बिगर सिस्टम ये है कि आपके एपीआई कैसे होंगे, बैकएंड और फ्रंट एंड कैसे इंटरेक्ट करेगा, आप वेदर डेटा कहां से कलेक्ट करोगे और उसको अपने बैकएंड एपीआई से कैसे दोगे. फिर इसके अराउंड परफॉर्मेंस की बात आएगी कि अगर आप फ्रंट एंड से वेदर का डेटा लेकर आना चाहते हो तो आपकी लेटेंसी कितनी होगी और उसको आप कैसे इंप्रूव करोगे बिगर सिस्टम में. और फिर यूआई बनाओगे तो यूआई रेस्पॉन्सिव होगा, मोबाइल फ्रेंडली होगा, नहीं होगा. दिस इज लाइक अ वेरी हाई लेवल पिक्चर. अब इस पिक्चर को आप ड्रिल डाउन कर सकते हो, बैकएंड पीस में घुस सकते हो कि वेरी स्पेसिफिकली बैकएंड का डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा और वो डेटा कैसे स्टोर होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे स्टोर होगा, क्यों स्टोर होगा, उस डेटाबेस को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे. सिमिलरली अब अपन डीप डाउन ड्रिल डाउन कर सकते हैं फ्रंट एंड को. फ्रंट एंड में आपके एप्लीकेशंस में कितने कंपोनेंट्स होंगे, कैसे कैसे कंपोनेंट्स होंगे, वो आप कहां से लेकर आओगे, उसे रीयूज कैसे करोगे, फिर आपका वो आप डेटा कैसे पुल करोगे बैकएंड एपीआई से, उसका क्या मैकेनिज्म यूज करोगे, फिर उसके ऊपर आप लैंग्वेज चॉइसेस क्या करोगे, रिएक्ट यूज करोगे, टाइपस्क्रिप्ट यूज करोगे या फिर प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, एंड दैट लिस्ट गोज ऑन. Yes, so yeah, that was a great example and काफी अच्छे से आई थिंक लोगों को समझ आया होगा, मुझे तो समझ आया. बट अगर अंकुर को कभी और टाइम मिलेगा तो हम लोग किसी ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए सिस्टम डिजाइन पे बात करेंगे डिटेल में अंकुर के साथ.
सो अंकुर, अपना एक Sure. बहुत मेरा और अंकुर का एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन होता रहता है ऑन वन टॉपिक, स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन, कि किसी पर्सन को अगर एज अ डेवलपर स्टार्ट कर रहा है तो उसे किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में फोकस करना चाहिए या उसे मल्टीपल चीजों का फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए सो दैट ही कैन ग्रो इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस. सो अंकुर, इस पे आपका टेक क्या है? अब आप Yeah, everybody has a different take, and like for every person, different thing works out well. So I have seen people who are very good being a journalist, and I've seen people who are very good being like a specialist in one area. For me, I chose a specialization in the front end side, and the reason, like I initially did a bit of systems engineering and backend as well, and then I moved, and then I took up the generalization, the specialization on the front end side. There are few reasons. First thing is personally I feel if you are specialized in one area, you can add lot more value that other people will have a tough time to build. आपने सुना होगा 80-20 रूल. 80% चीजें बनाना आसान है, 20% बनाना मुश्किल है. तो अगर आप स्पेशलाइज हो तो यू कैन एक्चुअली डू दैट 20% ऑफ द थिंग, एंड विच इज वेरी हार्ड एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अगर आप कुछ बना रहे हो बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो मैं उस 80-20 रूल को अपने रोल से एसोसिएट करता हूँ. तो मेरे को लगता है वो 20% करने के लिए मेरे को स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. एंड सिमिलरली द अदर एस्पेक्ट दैट आई थिंक अबाउट इज लाइक आपके पास दिन में 24 घंटे हैं. 24 घंटे में से आप 8 घंटे जॉब करते हो, 2-3 घंटे पढ़ते हो, बाकी आपका पर्सनल टाइम रहता है. तो आप 2-3 घंटे में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रोज अपने आप को एक्सेल नहीं कर सकते, रोज सीख नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टाइम तो लिमिटेड है. आप उस टाइम को कितना जुडिशियसली यूज कर सकते हो अपनी लर्निंग के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा. तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे को लगता है कि अगर मैं एक एरिया में फोकस करता हूँ तो आई कैन कंटिन्यूअसली गो इन वन डायरेक्शन एंड लर्न थिंग्स एंड इम्प्रूव माई सेल्फ. ऑल्सो लाइक ये कम्युनिटी, द टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशन हो रहे हैं उसके कारण ओवरऑल वेब एंड इंटरनेट साइड वर्ल्ड इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट. तो आप अगर 3 महीने अगर आप कुछ ना पढ़ो तो आपको लगेगा यार दुनिया बदल गई, इधर से उधर हो गई. तो वो 3 महीने वो 2 जगह पे पेस कीप अप करना मुश्किल है. एंड द अदर एस्पेक्ट इज लाइक अपॉर्चुनिटीज वाइज फ्रंट एंड हैज इवॉल्वड इन लास्ट 20 years अ लॉट एंड देयर इज लॉट मोर डिमांडिंग रोल्स. तो अगर कोई फ्रंट एंड इंजीनियर बनता है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है. तो यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट एनी प्लेस एंड यू विल नेवर बी लाइक. मैंने ये भी कई लोगों से सुना है यार फ्रंट एंड इंजीनियर्स आर मतलब दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज बैक एंड इंजीनियर, बट वो सिनेरियो नहीं है. तो दे आर प्लेस एज इक्वल एज बैक एंड इंजीनियर्स एंड बैक एंड इंजीनियर्स आर प्लेस एज इक्वल एज front end engineers in a company and in a working environment, and they both have their own set of challenges, interesting problems to solve. And the other aspect that I think about is like if I'm building front end, the first impression is the last impression, and we are building that first impression. okay. Yeah, that's a great example. So अंकुर, अगर आपको बीइंग ए टेकी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ऐसा कोई एक सोशल प्रॉब्लम विच यू थिंक यू रियली वांट टू सॉल्व एंड थ्रू योर स्किल सेट, जो आपके टेक्निकल स्किल सेट है, तो उसके थ्रू आप कौन सा प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए? देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, पर ऐसा कोई एक सिंगल प्रॉब्लम जो आप चाहते हैं विच यू कैन सॉल्व. एंड वन मोर थिंग गाइज, जो हमें सुन रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर सकते हैं. आई विल टेक वन और टू क्वेश्चंस मोर एंड देन आई विल टेक वन बाय वन जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है, एंड अंकुर विल ट्राई टू आंसर दैट. या थैंक्स अंकुर. यस, आई थिंक हेल्थ केयर में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड हेल्थ केयर में अभी तक कम्युनिकेशन का इतना मतलब लाइक कंटेंट बहुत है बट राइट कंटेंट अवेलेबल नहीं है. एंड राइट कंटेंट भी अवेलेबल है बट वैलिडेट करना इतना आसान नहीं है. तो आई थिंक हेल्थ केयर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे मतलब यूजिंग इंटरनेट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कुड बी वन. लाइक लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको क्या डिजीज हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं. तो अवेयरनेस, उसकी अवेयरनेस बनाई जा सकती है एज वेल एज हेल्प देम मिटिगेट देम. ओके. सो ओके, हेल्थ केयर इट इज मेनली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. सो अंकुर, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेक्स्ट 10 years, कि 10 years में हाउ यू सी द वर्ल्ड विल चेंज? अगर आज से 10 साल के बाद हम बैठे हों सेम तरीके से, डेफिनेटली वी विल बी इन मेटावर्स रादर देन डूइंग दिस वीडियो कॉल, पर इसके अलावा आप नेक्स्ट 10 years में क्या चेंजेस देखते हैं? तो लाइक पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के कारण बहुत चेंजेस आए और चेंजेस तो कंटिन्यूसली आते गए, लेकिन पेंडेमिक ने बहुत सारी चीजें बदली है. एंड द वे लाइक पेंडेमिक से पहले बोलते थे कि इंटरनेट वर्ल्ड, पेंडेमिक जैसा आया था तो बोलते थे कि इंटरनेट वर्ल्ड को नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ. बहुत ही पॉजिटिव रहा, एटलीस्ट फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज एज वेल एज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. दे वर यूज्ड मैसिवली एंड दे सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज वेल. तो जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, एक तो क्या है, इंटरनेट बहुत फास्ट होता जा रहा है. विद एवरी ईयर यू विल सी बैंडविड्थ
इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा है. द अदर एस्पेक्ट इज लाइक ब्राउजर्स बहुत ज्यादा कैपेबल हो गए हैं, मतलब नई कैपेबिलिटीज ऐड हो रही है. So that brings a lot of opportunity to build different things and very differently. Similarly, if you see other technology innovations in terms of like IoT as well as like IoT, then there are a lot of things built like on the payment side, your map side of things. तो बहुत सारा इनोवेशन उस तरफ हो रहा है, सब लोग बहुत मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके कारण जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग बन रहे हैं. तो मेरे को लगता है कि इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स का और इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर. Apart from that, cryptocurrency could be a big thing. Metaverse and AR VR things could also be even bigger. Like 10 years is a big time, but I think 10 years में काफी innovation उस side पे होगा. But with all this innovation, front end would be a critical piece to build for all these applications. If you see like Google Maps is it's very front end heavy. Like you have to build that whole map, and it's quite interesting and quite challenging. Similarly, Metaverse में अगर आपको Metaverse बनाना है तो that whole piece, that the visualization layer is very challenging and very interesting to build. So opportunities will be even bigger than what you see right now. Yeah, मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन मीन्स फ्रंट एंड. So and that is the last impression, right? So I think 10 years में पता नहीं कितना कुछ चेंज होगा. लास्ट 10 years में जितना बड़ा चेंज मैंने देखा है, तो आई थिंक कि कुछ अलग ही होने वाला है. इट लुक लाइक मैजिक, आई गेस, जिस रेट से चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है. सो अगर जो नॉन टेक एंड टेक बैकग्राउंड से लोग हैं और जो टेक्नोलॉजी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, रीजन बीइंग अपॉर्चुनिटी उसी साइड है. मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर दैट साइड ओनली. तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस और कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर चीजें सीखना, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं? तो सबसे पहले मतलब एक तो ये है कि फंडामेंटल्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है. आई हैव सीन पीपल लाइक दे थिंक दैट दे वांट टू लर्न टेक एंड दे जंप मल्टीपल स्टेप्स अहेड. लाइक आपको फ्रंट एंड बनाना है, आपने सीधा जस्ट किया, सीखा और आपने एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दिया. शुरुआत में कुछ दिन तक आसान लगेगा, उसके बाद वो मुश्किल हो जाएगा. इसलिए पहले फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स अगर नहीं बनाओगे तो वो हमेशा गैप रहेगा. आपको इट विल बी लाइक अ हॉलो. जो भी स्किल आप बना रहे हो वो काफी मतलब एट सरफेस रहेगा. तो इसलिए बेटर है थोड़े से फंडामेंटल्स बिल्ड करो और साथ में अपनी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करके उसको बिल्ड करते रहो. तो टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से इफ यू आर बिल्डिंग अ वेदर ऐप, तो उस वेदर ऐप को बनाने के लिए आपको सीधा रिएक्ट, उसका फ्रंट एंड पीस बना रहे हो तो सीधा रिएक्ट पे जंप करने की जरूरत नहीं है. अगर आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक कोर्स सबसे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर का करना चाहिए, एंड देन बेसिक कोर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट करना चाहिए, एंड देन बेसिक कोर्स ऑफ रिएक्ट करना चाहिए, और फिर तीनों यूज करके एक बेसिक ऐप बनानी चाहिए और उस ऐप को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए. राइट. ओके, सो लाइक आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, और डू यू? सो मतलब इसको अगर और एलेबरेट करें कि ये तो हो गया पर्टिकुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए टू स्टार्ट करियर इन. I was asking in a general way, like there are many people who wants to start their career in AI. Maybe there are some people who wants to start their career in metaverse, kind of AR VR kind of developer. तो अप्रोच, एक जनरलाइज अप्रोच क्या हो सकता है कि कहाँ से वो सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह के लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? सो इफ दे आर लाइक, अगर कोई बिल्कुल नॉन टेक है और वो स्टार्ट कर रहा है तो बेसिक फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है. Then they should learn basically about like basic data structure, and also like जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ड करना चाहते हैं उसका बेसिक सीखना जरूरी है. अगर you already have some technical background, then तो चीजें काफी सिंपल हो जाती है, क्योंकि वो जो बेसिक फंडामेंटल्स वाली लेयर है वो आपने पहले बिल्ड कर रखी होती है. तो उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ लाइक, लेट्स से इफ यू वांट टू लर्न लाइक मेटावर्स, बिल्डिंग एप्लीकेशंस इन मेटावर्स, तो ऐसा है कि कंटेंट आपको ऑनलाइन काफी कंटेंट मिल जाएगा, और आप बेसिकली एक अच्छा रिनाउंड सोर्स पकड़ो और उससे पढ़ते जाओ, एंड उस एरिया में जो लोग वर्क कर रहे हैं अपना एक इम्प्लीमेंटेशन बनाना शुरू करो. तो उसके साथ साथ जो लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट करो. एंड देयर आर काफी फोरम्स एग्जिस्ट करते हैं. यू माइट फाइंड सम ऑफ द स्लैक चैनल, so you can join those Slack channel, and like वहाँ पे लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. वहाँ पे आप भी अपने क्वेश्चन पूछ के अपने आंसर क्लैरिफाई कर सकते हो. बट उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो सबसे पहले उसमें अपना क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ पुट करो. साथ में आपने जो जो अटेम्प्ट्स करे हैं वो वहाँ पे डालो. इट्स नॉट लाइक अरे मेरे को ये नहीं आया मैंने सीधा पूछ लिया, बिकॉज अगर जो बंदा आंसर कर रहा है उसके जो स्टेप्स हैं वो समझ में आते हैं तो वो बेसिकली बहुत फोकस्ड आंसर आपको दे सकता है. एंड बहुत बार ये होता है अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट करते हो तो आप खुद भी सॉल्व कर पाते हो उस प्रॉब्लम को. राइट. यस.
एंड गाइज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू. एंड अंकुर, काफी सारे डेवलपर्स के लिए इन जनरल, इवन एनीबडी हु इज वर्किंग इन एनी फील्ड, एक प्रॉब्लम आती है टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन. आज तो 8 घंटे काम कर लिया, 10 घंटे काम कर लिया, पर उसके बाद होता ही है 3-4 दिन के बाद वो स्किप होना स्टार्ट हो जाता है. चलो यार कल कर लेंगे या थोड़ा सा कर लेते हैं आज. इट हैपन्स विद ए लॉट ऑफ पीपल. एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो सक्सेस वाला डिफरेंस है वो डिसिप्लिन के थ्रू आता है, सिंसियरिटी के थ्रू आता है. सो लोग वो कैसे मैनेज करें, मेंटेन करें कि यस वो शेड्यूल उनका फॉलो हो पा रहा है, वो मतलब उनका क्लियर प्रैक्टिस है कि ये करना ही है मुझे, चाहे कुछ भी हो. सो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्चुअली हेल्प्स देयर अ लॉट. आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपना एक प्लान बनाओ. उस प्लान में, और वो प्लान सिर्फ ऐसा नहीं, एक हाई लेवल प्लान नहीं, टास्क लेवल प्लान ब्रेक डाउन करके कि आप, मैं ये काम करने वाला हूँ तो ये वाला टास्क करने वाला हूँ तो इसको इतना टाइम लगेगा. एंड उससे आपको हमेशा रोज दिखेगा कि यार मैं इतना लैग कर रहा हूँ या इतना आगे चल रहा हूँ. और सिमिलर थिंग आप अपने लर्निंग साइड पे भी कर सकते हो. ओके ओके. तो मतलब आप कोई भी टूल यूज करो, चाहे अपने मतलब पेपर पे पेन एंड पेपर लेके करो. लाइक आपने 1 महीने का प्लान बनाया तो उसे 1 महीने का ब्रॉड प्लान मत बनाओ, उसमें मतलब डेली का प्लान बनाओ कि इस डे पे मेरे को ये करना है. आपको एक दिन भी डिले होगा, आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि यार मैंने ये चीज मिस करी है, नाउ आई हैव टू डू इट. अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो आगे का मेरा पूरा प्लान गड़बड़ा जाएगा. राइट राइट राइट. डिसिप्लिन मेंटेन करना कहीं ना कहीं जरूरी है. आप हमेशा अपने गोल्स पे फोकस करो और उसके साथ प्लान बनाओ, तो गोल्स आपको हमेशा ये फील होगा यार मेरे गोल्स मिस हो रहे हैं. राइट राइट राइट. सो गोल्स पर ड्रिवन होना काफी जरूरी है. गोल्स पर ड्रिवन होने के 2-3 तरीके होते हैं. इफ यू, वन वे टू थिंक अबाउट इज लाइक व्हाट इफ आई अचीव दिस. अगर मेरे ये गोल पूरा हो गया तो मेरे को लाइफ में इतनी सक्सेस मिलेगी. तो योर सक्सेस कुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर. कुछ लोगों के लिए गोल्स पर ड्रिवन होने का तरीका ये होता है, यार मैं बाकी लोगों से बेटर हो जाऊंगा. अपने माइंड में ही होता है. आपको ड्राइव करते हैं जो गोल्स पे, वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजें ड्राइव करती है गोल्स पे. अंकुर, आप मेरे दो थोड़े से स्ट्रेंज क्वेश्चंस है. पहला तो ये कि पहला प्रोग्राम क्या था जो आपने पहला प्रोग्राम बनाया था अपनी लाइफ में, इस चीज पे था? बहुत ही पहला प्रोग्राम, सबसे पहला प्रोग्राम 4th और 3rd क्लास में हम पैटर्न डिजाइन बनाते थे. तो 3rd और 4th क्लास में लाइक स्टार बनाना और वो सब. ओके. आई थिंक सबने करा होगा. वो बेसिक लैंग्वेज हुआ करती थी और लोगो एक लैंग्वेज हुआ करती थी. तो वो सबसे पहला बनाया था. उसके बाद लाइक जो मैंने खुद से बनाया था, जो किसी ने नहीं बनवाया था, मैंने एक बेसिक वेबसाइट बनाई थी चैट एप्लीकेशन की. बेसिकली मतलब 2000 टाइम फ्रेम में याहू रूम्स काफी चलते थे. मैंने एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई थी. उस पर आप बेसिकली एक रूम, लाइक नॉन लॉग्ड इन यूजर की तरह एक रूम को ज्वाइन कर सकते हो. तो मैं रूम को लिस्ट कर दूंगा और उससे रूम को ज्वाइन कर सकते हो. दैट वाज वन थिंग दैट आई डिड. ओके. आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई है इस पे, क्या नाम है यार उसका, जो ऑडियो चैट रूम्स बनते हैं, देयर इज वन एप्लीकेशन, क्लब हाउस. Clubhouse, yes. It's a 10 billion plus venture right now. So, right. And अभी जो recently आप solve कर रहे हैं problem in Twilio actually, तो आप किस चीज पे काम कर रहे हैं अभी और क्या प्रोडक्ट आप बिल्ड कर रहे हैं? मैं एक्चुअली ट्विलियो का एक प्रोडक्ट है सेगमेंट, जो उन्होंने करीब 2 साल पहले एक्वायर करा था. मैं उस पे काम कर रहा हूँ. एंड आई एम पार्ट ऑफ वेयर हाउस टीम. तो बिग डेटा, इफ यू नो, बिग डेटा में वेयर हाउसिंग एक एस्पेक्ट होता है जहां पे आप डेटा को किसी भी सोर्स से एक सिस्टम में लेकर आते हो और उसके ऊपर इंटेलिजेंस बिल्ड करते हो और उस डेटा, बाद में उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके आप उसको देखते हो कि क्या करना है आगे. हो सकता है आपको उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके फिर से ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर कहीं और भेजना है, या फिर उस पर कुछ विजुअलाइजेशन करना है. आई एम वर्किंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. टिपिकली दिस इज कॉल्ड ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड फॉर वेयर हाउसिंग. ओके ओके. एक मदन का क्वेश्चन आया है एंड ही इज आस्किंग वेरी स्पेसिफिकली कि अगर उन्हें करियर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर स्टार्ट कर रहा है, जैसे आपने बताया जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, विच इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्चुअली, पर किस लिमिट तक आना चाहिए? ही इज आस्किंग कि HTML आना चाहिए तो ठीक है, इस जगह तक HTML हो गया, इस जगह तक CSS हो गया, एक बार स्टार्ट करने के लिए इस जगह तक जावास्क्रिप्ट हो गया. व्हाट आर दीज लाइक पॉइंट्स जहां पे जाके ये कह सकते हैं कि ठीक है अब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर? 2 बातें हैं. एक तो ये है कि लाइक फ्रंट एंड डोमेन में मतलब सारी चीजें याद होना बहुत जरूरी नहीं है. आपको ये बताना चाहिए कि यार हाई लेवल पे काम ऐसे होता है एंड मैं एक्सप्लोर करके चीजें बिल्ड कर सकता हूँ. एक तो बात ये है. दूसरी चीज ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए, मैं ये बिल्ड करूंगा तो ये प्रॉब्लम्स, इसको बिल्ड करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे को. तो टू गिव यू एन इंडिकेटर, लेट्स से इफ यू लाइक इफ यू थिंक लाइक कितना आना चाहिए, उस हिसाब से आई थिंक यू शुड बी एबल टू बिल्ड, like especially on the front end side, you should be able to build pages which are very like HTML and CSS साइड में. अगर आप फ्लिपकार्ट जैसा पेज को बना पा रहे हो
taking some help from Google, I think that should be good. Okay, just using HTML and CSS, JavaScript का भी इतना requirement नहीं है. JavaScript का requirement है, लेकिन JavaScript आप मतलब JavaScript के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, if you are able to build like good components using JavaScript, like carousel बना पा रहे हो and drop down बना पा रहे हो, and then उसको API से integrate कर पा रहे हो, data लेकर आ पा रहे हो, और ये components आप जब बनाते हो तो modular बना पा रहे हो. That level of knowledge is good. ओके अगर इतना कर लिया तो इजीली किसी एक अच्छी कंपनी में आप जा सकते हो. इसके ऊपर आप फिर बिल्ड कर सकते हो, जा भी सकते हो, बिल्ड भी कर सकते हो अपनी नॉलेज. दिस इज लाइक अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट. उसको आप एक्सटेंड करना बहुत आसान होगा. ओके आई थिंक मदन आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का. अंकुर ने एकदम प्रॉपरली बता दिया है. सो अभी यार बहुत सारे अंकुर एप्लीकेशंस ऐसे बन रहे हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिस पे वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं, राइट? देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट. So do you really think these things may replace front-end developers in next 20 years, 25 years? Drag and drop as in like no code UI. Yes. So no code UI actually जो companies provide करती हैं वो actually वो आपका work वो कर रहे हैं basically. Okay. So it will never replace front-end engineer. At least at this point I don't know what will replace front-end engineers, to be really honest. But it's like आप कर रहे हो, आपकी जगह कोई और करके दे रहा है वो काम. एंड एक मैं पढ़ रहा था आर्टिकल कि देयर आर वेरी रेयर लैंग्वेजेस जो बहुत लंबे टाइम में रिप्लेस नहीं हुई है. वन ऑफ देम इज जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट काफी पुराने टाइम से चल रहा है और उसका अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकला है. व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं बना है जावास्क्रिप्ट? So JavaScript is the fundamental language that runs on the browser. So JavaScript बहुत इवॉल्व हुई है. If you want like JavaScript is called ECMAScript. JavaScript is just a specification and it does not have any relation with the implementation aspect. So वो ये बताते हैं JavaScript के spec के हिसाब से कि ये APIs हो गया और ये APIs ये काम करेंगे. अंदर का implementation JavaScript के specification में नहीं है. तो आप अगर JavaScript रन करते हो Chrome पे तो implementation कुछ और हो सकता है, performance कुछ और हो सकती है. आप रन करते हो किसी और browser पे तो कुछ और हो सकती है. This provides a lot of room for developers who develop browsers the way they want to implement. Okay. The other thing is web world में standardization की काफी जरूरत है. तो अगर आप फॉर एग्जांपल आज JavaScript को रिप्लेस करके कोई और लैंग्वेज ला देते हो तो सारे ब्राउजर जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे नहीं. जो आपने एप्लीकेशन बनाई है एक ब्राउजर पे वो दूसरे ब्राउजर पे चलेगी नहीं. तो दैट विल बी अ वेरी बिग डिटरेंट. And there is a W3C standard as well which drives some of those things. तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना ब्राउजर बना दूं तो फिर मतलब सब और मैं उसको कोई और लैंग्वेज यूज करने लग जाऊं तो जो मेरी उस ब्राउजर से कोई वेबसाइट बनाएगा तो वो कहीं और नहीं चलेगी. तो टिपिकली इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो क्या करते हैं यू कैन यूज डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस बट इवेंचुअली दे विल क्रॉस कंपाइल इट टू जावास्क्रिप्ट. फंडामेंटल लैंग्वेज फिर जावास्क्रिप्ट हो गया ब्राउजर का इन ए वे. हाँ. अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में या कोई चेंज करने की सोच भी रहा है. आई थिंक यही इवॉल्व होगा. हाँ यही इवॉल्व होगा और मोस्टली ऐसा होगा कि अब कोई भी एक लैंग्वेज आएगी अगर वो लैंग्वेज प्रॉपरली कंप्लीट लैंग्वेज होगी और पूरा सारे यूज केसेस सपोर्ट भी कर पाएगी देन आल्सो दे विल हैव टू गिव अ वे टू क्रॉस कंपाइल इट टू जावास्क्रिप्ट. ओके सो जावास्क्रिप्ट आएगा. एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कोई भी अगर एक फीचर नया जुड़ता है ब्राउजर में सारे ब्राउजर्स को अडॉप्ट करने में काफी टाइम लगता है. ओके. तो एंड डेवलपर जब उस फीचर को बिल्ड करते हैं उस कैपेबिलिटी को यूज करते हैं दे विल हैव टू मेक श्योर कि मैंने ये फीचर बिल्ड करा तो इस ब्राउजर पे नहीं चल रहा है तो अदर ब्राउजर पे चले. तो मैं उस मतलब बैकवर्ड कॉम्पेटिबल कोड लिखता हूँ. हर डेवलपर को लिखना पड़ता है उसका बैकवर्ड कॉम्पेटिबल कोड और वो बैकवर्ड कॉम्पेटिबल कोड आप खुद से नहीं लिख रहे हो तो हो सकता है जिस लाइब्रेरी का यूज कर रहे हो वो लिख के दे रही हो आपको. अच्छा. ओके मतलब बेसिकली लाइब्रेरीज हो गई फॉर जावास्क्रिप्ट और सम अदर लैंग्वेज बट वो कंपाइल जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे, राइट? जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे और कोई भी नया फीचर आएगा ब्राउजर में डेवलपर हैज टू मेक श्योर कि वो नया फीचर हम यूज कर रहे हैं तो भी हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो बैकवर्ड कॉम्पेटिबल हो. ओके. जिससे कि नए ब्राउजर के बाद अगर कोई यूजर पुराने ब्राउजर को यूज करता है तो दे आर स्टिल एबल टू एक्सेस दैट वेबसाइट. ऐसा ना हो कि ब्रेक हो जाए. ओके सो हम गाइस समझ पा रहे हैं ना जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर्स है कि ब्राउजर स्पेसिफिक चीजें ब्राउजर कितना पुराना है नए वर्जन्स क्या आ चुके हैं आपको सब में टेस्ट करना पड़ेगा आप जो भी यूआई बिल्ड कर रहे हैं, राइट? आई थिंक अंकुर. हाँ एटलीस्ट लाइक व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड उस ऑडियंस के हिसाब से आपको अपने ब्राउजर आपके स्क्रीन रिजोल्यूशन रिस्पॉन्सिव यूआई और नॉन रिस्पॉन्सिव यूआई ये सब चीज आपको क्लियरली अपने गोल्स में सेट कर लेना चाहिए
और उसी के केस को केटर करके बिल्ड करना चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी टेस्टिंग करनी चाहिए। शुभम कुमार का एक क्वेश्चन है, उसके बाद में मेरा एक और क्वेश्चन है पूछूंगा। शुभम कुमार का क्वेश्चन ये है कि आपने HTML CSS के बारे में तो बता दिया, जावास्क्रिप्ट के बारे में बता दिया कितने लेवल तक आना चाहिए, रिएक्ट जेएस के केस में ऐसा क्या है, किस पॉइंट तक आपको रिएक्ट जेएस आना चाहिए एज अ बिगिनर कि आप एक कंपनी में काम कर सकते हैं एज अ रिएक्ट डेवलपर? So for React, like my perspective is to use the React documentation. जो react.org पे documentation exist करता है, उसको follow करो। उसका till the advanced part, advanced से पहले तक का सारा आपको आना चाहिए। ओके, एडवांस से पहले कुछ आप स्पेसिफिक बताएंगे कि ऐसी कोई चीजें हैं? Like right now React साइड पे देखो दो पैराडाइम्स हैं, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स है और एक हुक्स बेस्ड कंपोनेंट्स है। With newer way of writing things, hooks based components is like now being adopted everywhere. एंड हुक्स की अपने एडवांटेजेस हैं, कोड लेंथ कम हो जाती है, जो भी है बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो आप अगर हुक्स बेस कंपोनेंट्स, आपको बेसिक कंपोनेंट लिखना, कंपोनेंट्स के आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, डेटा फ्लो कैसे होगा, ये एस्पेक्ट पता होने चाहिए। फिर लाइक कुछ चीजें ऐसी है जो मतलब बहुत क्लियरली बताती है दिस इज अ नो गो। अगर आप इफ यू डू दिस योर कंपोनेंट विल बी बैडली इम्पैक्टेड बाय परफॉर्मेंस। दोज आर लाइक स्टैंडर्ड कंसेप्ट एंड दोज कम्स बिफोर your advanced concepts. तो वहां तक आपको पता होना चाहिए। And it is fairly straightforward if you know JavaScript and if you have built any very small application, then following the React documentation is very good. And all the concepts are very explained with taking an example. Okay. So अंकुर, वैसे मदन का क्वेश्चन है, उसके बाद आप पहले मदन का क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि React JS का स्कोप क्या है, अभी React JS का स्कोप क्या है? एकदम प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन है उनका। यस। So like right now I am focusing a lot more on React. I have worked with multiple frameworks and every framework brings its own advantages and disadvantages. But like I personally like React a lot and there are reasons for it. And not just me, if you see the whole community, everybody is trying to adopt React as much as possible. There are a few more other promising frameworks coming up which could even be better than React, but right now they are not that well adopted. As well as React community is also evolving and making more improvements. So मेरे को लगता है React at least 4 to 6 years it will be a big thing. उसके बाद किसी को पता नहीं है what happens, but 4 to 6 years तक I think React will be a very big thing. And the big advantage with React is it is backed by Facebook and Facebook की एक core team है जो कि React को support कर रही है, and not just them, since like when any developer use React and there are a lot of people who want to contribute back to React as well. So that's why like the whole React community is becoming bigger and bigger and रोज आपको नई improvements आ रहे हैं React के अंदर, performance change हो रही है, features नए build हो रहे हैं। So this whole community is trying to make React better. The main problems come when like you have built something which is available out in the market and people are not maintaining it, improving it, right? So that's not the case with React. The other big advantage that React brings in is like in a certain way it is very open. So you can use mix and match of various other components or packages or libraries with React. तो अगर कोई डेवलपर है वो अपना पैकेज बना रहा है एंड React डेवलपर्स यूज करें तो वो अपना पैकेज React के सबसे ज्यादा अच्छा बनाएगा एंड React की कम्युनिटी एंड ही माइट आल्सो थिंक दैट अगर मेरा पैकेज React, मैं कुछ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट्स React में कर दूंगा, मेरा पैकेज बेटर हो जाएगा, तो ही विल आल्सो ट्राई टू डू दैट एंड दैट मेक React कम्युनिटी इवन बेटर। आई थिंक मदन इससे अच्छा आंसर शायद कोई और नहीं कर सकता था। एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ अंकुर कि देयर इज वन न्यू थिंग, वेब एप्लीकेशंस राइट नाउ, कि कुछ कंपनीज है जो नेटिव एप्लीकेशन से वेब एप्लीकेशंस की तरफ मूव करने का कह रहे हैं, ठीक है? सो क्या एक्चुअली इज देयर एनी चांस कि नेटिव एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेब एप्लीकेशंस मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं? मेरे पास बहुत ज्यादा इंसाइट्स नहीं है इस बारे में, बट एंड इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस। तो मार्केट में क्या होगा उसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट लाइक अ लॉट ऑफ कंपनीज आजकल एक्चुअली हाइब्रिड फ्रेमवर्क भी काफी चल रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है कि कुछ पीसेस नेटिव वेब लिख लेती हैं और कुछ पीसेस वेब एप्लीकेशन साइड पे रख लेती हैं टू इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी, एंड कुछ कंपनीज ये कर रही है रिएक्ट नेटिव यूज कर रही है, तो दे गिव नेटिव एक्सपीरियंस एंड they focus on reusability as well. So like there are different kind of models which people are adopting. Is there any chance अगर native applications के comparison में web applications, क्योंकि React native है, लोग तो बहुत यूज कर रहे हैं, पर yes, React native is more like a native application, but there are some implications around performance and some certain things if you do with React native it will hinder a bit on the performance side. तो लोग जो बिल्कुल लास्ट माइल परफॉर्मेंट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं
इनके लिए मतलब परफॉर्मेंस बैटरी बहुत ज्यादा मैटर करती है और बहुत ही फाइन ग्रेन इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, they go towards like building pure native application. Otherwise, a lot of people are good with React Native these days. ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब कुछ कुछ फंक्शनल, एक सबसे बड़ा तो अगर आप बिजनेस साइड बात करें तो नेटिव में और एप्लीकेशन में और रिएक्ट नेटिव के थ्रू वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस सबसे बड़ा यही आ जाता है कि वो डाउनलोडेड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेटिव एप्लीकेशन है, एंड वो आपको पेज सेव करना होता है इन वे वेब एप्लीकेशन का, जो प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होता है लोगों के करने का। सो थिंक आई डोंट नो। Yeah, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है that comes when you're building like a PWA kind of application. Yes, So PWA is progressive web application जो कि downloadable applications होती है. But React Native, a lot of companies or a lot of app builders are using these days so that they can cater a web as well as mobile platforms easily. And Okay. specific pieces they are building in pure native as well, so which are very performance critical. ओके, सो अंकुर आपका एंगुलर पे टेक क्या है? रिएक्ट का तो आपने बताया कि देयर इज अ बिग स्कोप इन रिएक्ट, बट एंगुलर और रिएक्ट के केस में पहली चीज तो डिफरेंसेस क्या है थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे, और आपने एंगुलर का नाम नहीं लिया व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट फ्रेमवर्क। So Angular, like एक time पे Angular was one of the biggest framework. It is backed by Google, so it is very complete framework. And whatever you are building with Angular, you can do anything. You can build any application using Angular. दो चीजें हैं जो मेरे को फंडामेंटल डिफरेंस लगते हैं. First thing is if you are building like Angular is a complete framework. तो आपको जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं वो Angular साथ में देता है. React में मेरा ऐसा नहीं होता. React में आप अपने हिसाब से चूज क्या चाहिए. लाइक स्टेट मैनेजमेंट है तो आपको React में आप कोई भी स्टेट मैनेजमेंट यूज कर सकते हो. एंगुलर बाय डिफॉल्ट आपको एक पैराडाइम देगा, इस तरह से आपको स्टेट मैनेज करनी है. तो एक तो वो है, तो सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस एक्चुअली यही है. एंड देन द वे द डेटा फ्लोज, देयर आर सर्टेन differences there. I don't want to go too technical on those sides, but the biggest difference is आप Angular के साथ pick and choose कम कर सकते हो, React के साथ pick and choose बहुत ज्यादा कर सकते हो. और दूसरी चीज ये है, React at least for the use cases that I built application, I felt React was more performant, and it may change case to case basis. Also, the other thing is like आपको अगर एप्लीकेशन जल्दी बिल्ड करनी है तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि if you let's say if you are building an application, you want to deliver it very quickly. You think like I'm building something and यार मेरे को 2 हफ्ते में खत्म करना है, तो मैं React सीखने बैठूंगा नहीं, तो या मैं Angular सीखने नहीं बैठूंगा, तो वो भी कुछ डिसीजंस में आपको हेल्प करता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप व्हेन यू चूज अ लैंग्वेज. कम्युनिटी सपोर्ट कितना है, बंडल साइज कितना है, so you have to think about like 100 things and then take a call on which framework you want to use. Currently also you can see a lot of big companies are using Angular. Yeah, exactly. Like 30-35% के आसपास जो वेबसाइट बन रहे हैं वर्ल्ड वाइड, they are in Angular. 40% के around they are in React actually. So almost similar. And I think Angular is by Google, right? हाँ. तो वो वाला भी पार्ट है कि कम्युनिटी विल ग्रो और फोकस भी होगा गूगल का कि इसको बढ़ाया जाए. सो एंड आई थिंक इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस लोगों के है नहीं. सो आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन कि टू बिफोर एंडिंग दिस कॉल, आपका लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू यंग डेवलपर्स जो अभी देख रहे हैं, जो अब जाकर किसी प्रोडक्ट कंपनी में काम करेंगे, सर्विस कंपनी में काम करेंगे एज ए प्रोफेशनल, उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव वहां पे करना चाहिए, फॉर एग्जांपल कैसे अप्रोच करना चाहिए चीजों को करने में, बिकॉज दे विल बी स्टार्टिंग देयर करियर. सो like I would rather take even one step back. So let's say if you are in college, whatever course is being taught to you, you should try to relate it with a real world problem. And I can give you an example. So you might have heard about a puzzle, like in typical interviews being asked 8-ball puzzle, and you have to identify a ball which is heavier. So in how many attempts you can do that? So in that case, you know, like it is like in 3 attempts in a normal way you can do it. But how does that like this problem you are solving? In the back of your mind, you are trying to use binary search. So let's say if somebody teaches you binary search, it's not like something which will never be in your job or in your daily life, right? In your work. So the concepts that are being taught are very much the curriculum is built so that they can help you in one or the other way. तो जब आप कॉलेज में हो तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो. ये मत सोचिए कॉलेज में जो मेरे को पढ़ाया गया है इट विल नेवर बी यूज्ड इन माय जॉब. वो करिकुलम बनाए इसलिए कि आपको हेल्प करेगा लंबे टाइम में. अगर आपको जावा पढ़ाया जाता है तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो तो भी काफी कंसेप्ट ओवरलैपिंग है. सिमिलरली अगर आपको सी पढ़ाया जाता है और आप पाइथन पे काम करते हो, बहुत सारे कंसेप्ट कॉमन है. एंड
आपको वो हेल्प करेंगे. तो ट्राई टू रिलेट एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल इन योर कॉलेज और इन वॉट एवर कोर्स दैट यू आर. द अदर थिंग इज you should try and build one project. If you are getting a good opportunity in your job, do the best you can there. Otherwise, try to identify one project on your own and build it. And उस प्रोजेक्ट को आप काफी इंक्रीमेंटल वे में बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हो कि हमने एक पहले बेसिक सेट फीचर सेट बनाया, फिर उसको एक्सटेंड करा और कॉम्प्लेक्स फीचर्स बनाए, फिर उसको सोचा कि ओवरऑल कैसे करूंगा, उसको बेटर यूआई कैसे दूंगा. इट माइट स्टार्ट अप योर ओन स्टार्टअप एज वेल. So you are building something with passion and it may become big in long term. Right. The other aspect is collaboration. So even when you are in college or if you are early in the industry, collaboration is very important. And from my past experience, I have seen if a company has or if persons have like great collaborating skills, they are much more successful. So अगर आप collaborate नहीं कर पाते उधर लोगों के साथ, तो आपका जो विजन और आप जो चीजें समझते हो और आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है और आप जिस तरह से काम करते हो वो लेसन इफेक्टिव हो जाता है. लोगों के साथ कोलैबोरेट कितना अच्छा कर सकते हो, कितना मतलब आप ओपनली उनसे बात कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, हेल्प कर सकते हो, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है. द अदर एस्पेक्ट इज लाइक आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड what like building a community and network, so which is very important. And I think while you are in college or while you are doing any course, you should build a very good bonding and friendship with people who are around you. And similarly when you are in a company, you should build that rapport with everyone there as well. I think अंकुर का advice is very clear. Be a good human being. जहाँ भी जा रहे हो लोगों से अच्छे से behave करो, एक community बनाओ, लोगों के साथ collaborate करो, team work पे focus करो, क्योंकि कुछ भी बड़ा achieve करने के लिए you need people. आप अकेले सब कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते. सो आई थिंक अंकुर आप यही कहना चाहते थे. हाँ, एग्जैक्टली राइट. सो गाइज आई थिंक अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चंस नहीं है, आई थिंक मेरे को तो सीखने के लिए काफी अच्छा रहा ये सेशन. आई लर्न ए लॉट फ्रॉम हिम एंड मेरा काफी अच्छा फ्रेंड भी अंकुर. सो जैसा कि फ्री ई सर्टिफिकेट के लिए देयर इज ए फॉर्म लिंक इन यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, आप उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं. यू गाइज विल गेट योर ई सर्टिफिकेट. Other than that, you guys can follow Ankur, his LinkedIn. Ankur LinkedIn पर अवेलेबल है अंकुर अग्रवाल के नाम से, राइट. एंड आप वहां पे अंकुर को फॉलो कर सकते हैं. अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं, आई थिंक ही वोंट माइंड हेल्पिंग यू गाइज आउट, है ना. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अंकुर को डायरेक्टली LinkedIn पर मैसेज कर पूछ सकते हैं. ही विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं टेक डोमेन में, तो सिंपल है, कम्युनिटी बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए. कम्युनिटी बनाइए, अपने जैसे सिमिलर लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए, उनकी हेल्प आप कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे. एंड दैट इज हाउ टेक जितना ग्रो किया है ना, वो कम्युनिटी के कारण ग्रो किया है. जितना फास्ट ग्रो कर रहा है वो कम्युनिटी के कारण कर रहा है, और उसमें भी ओपन सोर्स कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, राइट अंकुर. ओके, एक और क्वेश्चन आ गया, अगर लेना चाहते हैं तो अंकुर आप. हाँ, मैं ओके, शुभम कुमार का, सर डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट जेएस एंड नेक्स्ट जेए. नेक्स्ट ईयर JS, okay. Company approximately use Next.js. कोई ऐसी कंपनी है जो Next.js यूज करती, और डिफरेंस क्या है React और Next में? So Next.js is built on top of React.js. So React.js के अंदर like if you are building application using React.js, you can pick and choose multiple pieces and then build your application. Next.js provides you some extra features out of the box. Like if you are building an application which is like server-side rendered application, it is very easy to do with Next.js, and you can actually go to the Next.js website and see those differences. So, like from my perspective, React.js is the precursor to Next.js. So you should learn React and build anything, and then you have multiple choices. You may choose Next.js, and you may choose any other package similar to Next.js, which internally uses React. And the components that you will write in either of them will be React components itself. सो आई थिंक शुभम आपको समझ आ गया होगा, Next.js जो है वो React.js पर ही बना हुआ है. सो पहले तो आपको React.js प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन कि आपको Next.js पे आगे चीजें बनानी है, React पर ही बनानी है. दैट्स अप टू यू. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है टू गेट द फ्री सर्टिफिकेट. एंड अंकुर को आप LinkedIn पर फॉलो कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं. ही विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस. एंड जितना भी टेक ग्रो किया, इट्स बिकॉज ऑफ द ओपन कम्युनिटी. तो हम लोग भी आपको यही एडवाइस करेंगे और बोलेंगे कि आप कोलैबोरेट करें और लोगों के साथ, जो लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं इन एनी इंस्टीट्यूशन, एज इन लाइक आइदर इट कुड बी योर कॉलेज और L4O, अगर L4O के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप अपने साथ के जो पीयर्स हैं, जो लोग हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ बनाइए,
कोई वेबसाइट हो सकती है, पता नहीं, इट कुड बी योर नेक्स्ट बिग आइडिया, आपने सोचा भी नहीं हो और वो बहुत बड़ी चीज बन जाए। और बहुत सारी चीजें ऐसे बनी भी हैं बाई एक्सीडेंट, पीपल डिडंट नो अबाउट इट कि यार ये इतना बड़ा हो सकता है, एंड दे बिकेम बिग एक्चुअली। सो यही सिंपल एडवाइस रहेगा टैकीज के लिए, स्किल्स तो बिल्ड करो अपनी, लेकिन कम्युनिटी भी बिल्ड करो। सो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर 5th एपिसोड। अगली बार एक और हमारे साथ गेस्ट होंगे 6th एपिसोड में, एंड वो भी इंडस्ट्री में उन्होंने भी काफी कुछ अचीव किया होगा, जो भी हमारे नेक्स्ट गेस्ट होंगे, और वो आपको पता लग जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम पे कौन गेस्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है, टू इंस्पायर अस, टू मोटिवेट अस टू डू समथिंग इन आवर लाइफ, टू अचीव दैट मासिव सक्सेस। और इसीलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये पॉडकास्ट को कर रहे हैं, ताकि हम जो लीडर्स हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के, उनको बुलाकर हम समझ सके कि हम अपने अंदर वो स्किल सेट को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सके। और वो मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा बन जाना है कि लोग नाम तो जाने हमारा। सो वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे जो अंकुर जैसे लोग हैं, इन लोगों से ही हमें सीखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन रीच देयर। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच अंकुर फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड yeah, thank you so much. Thank you, Kamal, for inviting me, and it was really nice talking to you. And anybody like who is seeing this, watching this, if you need any help, feel free to reach out to me on LinkedIn. I will try to help as much as possible. And like all the best to everyone. I hope you achieve what you want, or even beyond that. Wish you all best of luck. Thank you everyone for joining us. I hope it was a nice session. Thank you.